Good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. So, today we're doing the fifth session of the topic that we started, which is educate your feelings. And today is the last session, so we'll have a quick summary and then the question and answers towards the end. So, for the session today, we will have Sangeeta Didi to take the session. Didi, welcome, Om Shanti, and over to you. Shanti, welcome all of you. Well, again, the last day of the year, and also Om Shanti. So, all those who are in the last day of the year, they would just bid goodbye to the last year by opening the videos, right? How come we know that we have bid goodbye? Okay. And more important is like, as we said, uh, go through of the uh, whole sessions. So it was a very beautiful, if we just see, uh, beautiful finding also among us ourselves, and also the depth of the feelings. Educate the feelings. Educate your feelings. Why we have to educate? What is the difference between understanding the feelings and educating the feelings? Yes, so today it would be interactive, right? So you also would be asking me questions, and maybe I also would ask you questions about what we have learned throughout the four sessions. चलो, तो सभी समझदार हैं। जो समझदार है इसलिए वीडियो ऑटोमेटिक ऑन करेंगे। एंजल्स है ना सभी। एंजल्स वैसे भी समझदार होते हैं। सो ओके, so the difference, let's participate. All of us will participate. huh? The last day of the year, and it's like the last, all the negative trends, traits, tendencies, habits will let go. So let's understand. So therefore we'll just speak. आपस में बातें करेंगे। ठीक है। हाँ। तो what is the difference between understanding the feelings and educating the feelings? What do you feel? We feel normally, हम क्या कहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। बट मोर इम्पोर्टेंट इज अंडरस्टैंड और एजुकेट। यस, पास्ट चैट्स में मोर इम्पोर्टेंट क्या है, एजुकेट या अंडरस्टैंड करना? क्या कहेंगे? एजुकेट करना, वंडरफुल। सो अंटिल टुडे इट वाज जस्ट कि यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझो, ये करो। पर एक दूसरे को फीलिंग्स को एजुकेट करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So, therefore, we learned in the whole sessions how to educate our feelings, how to, whatever feelings which you are going across. Education में क्या होता है? Yes, wonderful. We want answers throughout from you. चाहे बोले नहीं बोले, फटाफट आंसर देते। Now, when we, हम जब हमने क्या किया था कि वी यूज टू, कुछ भी बात हो जाती है, वी यूज टू, जैसे कुछ घाव हो जाता है, वन हु डजंट अंडरस्टैंड द इंजरी, मतलब इंजरी हो गई है, दे डोंट नो कि अभी ये इंजरी जाएगी कैसे, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर, what will happen, they will go on suffering that injury. Now if that person is educated, understanding कि हाँ, अब ये घाव हो गया है, ठीक है, जुकाम हो गया है, नाउ आई हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ मेडिसिन। सो you are when you understand, and then you know anything about how to solve that thing, it's called education. So what, until now, feelings
वी आर गोइंग थ्रू ऑल द फीलिंग्स, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग कि मुझे ना बहुत फील हुआ, दिस पर्सन सेड मी लाइक दैट, नो आई, इट रियली हर्ट मी, they understood my feeling. This is, this person, what he said is not good. And I'm going through the feelings of hurt. I'm going through the feelings of anger. So we know that feeling, but are we able to solve it? हाँ, सॉल्व होता है। तो इसलिए एजुकेशन मतलब नाउ व्हाट इज देयर टू सॉल्व इट, ताकि वो सॉल्व हो जाए वो फीलिंग्स को। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। तो अब मुझे वो हर्ट हुआ, हाउ डू आई सॉल्व? नाउ एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम देते हैं दैट विल, लेट्स अंडरस्टैंड इट। वन मिस्टर ए एंड he's he has done very good job. The boss is satisfied. He says कि कल आप, we have to do a meeting, और कल आप जल्दी आ जाना, क्योंकि in this meeting and you prepare these papers and bring tomorrow. So every day you reach at 10, कल तुम 9:45 को आ जाना। Okay, sir. And tomorrow, Mr. A is has got up early, 15 minutes early. अच्छा, अब वो ब्रेकफास्ट पे टेबल पे बैठना होता है। His 10-year-old child, he's already in the breakfast table because the child also has to go to the school. और वो चाय पी रहा है। द मोमेंट द फादर कम्स, फादर पूरा तैयार होके आ रहे हैं बिकॉज ही हैज टू लीव अर्ली लिटिल बिट। एंड क्या कुछ हो जाता है पता नहीं चलता है, एंड चाय गिर जाती है, और वो चाय टेबल पे गिरती है एंड द पूरा डायरेक्शन डैडी के शर्ट पे आता है। नया नया शर्ट, क्योंकि आज स्पेशली बॉस ने बुलाया था, पूरे शर्ट पे चाय आ जाती है। बहुत फील होता है, और बच्चे की तरफ देखता है, गुस्सा आता है। तुमको खाली चाय पीना भी नहीं आता है? तुम इतने बड़े हो गए, तुम इतने बड़े बड़े बिजनेस क्या संभालोगे? तुम इतने से चाय के कप को भी हैंडल नहीं कर सकते? दो तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं, और फिर वो उठ के जाते हैं, ड्रेस चेंज करके आते हैं। बाय दैट टाइम द चाइल्ड इज स्टिल वीपिंग, वो रो ही रहा है। वो नाश्ता भी नहीं किया। अब उसको बहुत मनाते हैं, ओके बेटा छोड़ो, चलो सॉरी, मैंने रॉन्ग कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये वो। पर वो मानता ही नहीं है कुछ भी। और फिर बोला कि चलो हम आपको, आज मैं आ जाऊंगा ना शाम को, यहाँ ले जाऊंगा। फिर भी नहीं वो मान रहा है। और फिर उसको याद आता है कि अरे उसकी स्कूल की बस तो चली जाएगी, अभी आने का टाइम आ गया। तो जल्दी उसको तैयार करके ले जाते हैं, और पता चलता है कि स्कूल की बस अब भी 2 मिनट पहले ही आई और चली गई। अब तो पहले ही वो रो रहा था, एंड नाउ ही इज मोर, अब नाराज भी हो गया कि आज तो पूरे अब स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। नाउ दे कम बैक टू द, अभी जल्दी फिर उसको याद आता है कि अरे आई हैव टू रीच द ऑफिस एट 9:45, नॉट बिफोर द यूजुअल टाइम। तो चलो इसकी तो बस मिस हुई, मेरा तो नहीं मिस हो। और टेक्स अ स्कूटर, टेक्स दैट स्कूटर बैक, किक लगाता है, फास्ट जाता है। पहुंचते कहीं खरोच आ जाती है, एंड देन ही कीप्स दैट स्कूटर इन द हाउस, थोड़ा उसको ठीक करता है। एंड फास्ट, क्योंकि अभी, क्योंकि बिकॉज वो डैमेज हो गई स्कूटर, तो उसको ठीक करने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। बाय दैट टाइम 9 o'clock ऑलरेडी हो जाता है, एंड ही हैज टू मूव एटलीस्ट 1 hour बिफोर इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिकॉज देर आर मेनी रेड लाइट्स। और लिया फिर फास्ट वापस स्कूटर को, और एकदम किक लगाया, और जल्दी, क्योंकि 9:45 को पहुंचना है, और पहुंचते पहुंचते 10 o'clock होता है। अब जैसे ही पहुंचता है, द बॉस सीज दैट घड़ी, ये क्या है? एंड सॉरी बोलता है, एंड फिर बोलता है कि बताओ वो पेपर्स लेके आओ जो मैंने कल किया दिया था।
एंड देन जब वो देखता है तो पता चलता है ही जस्ट फॉरगॉट टू ब्रिंग द पेपर्स। अब उसको दो तीन बातें और दिस बॉस सुनाता है, और फिर वो सोचता है क्या है, पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, सुबह से सारी गड़बड़ गड़बड़ हो रही। नाउ among us this all incident which happened till 9:45, I'm sure no one has gone across through today in the office इस टाइप का, till you have reached the office. Okay, ये इतने सारे इंसिडेंट में से the child coming for the tea and the spilling the tea over the shirt, and then the second incident, the father uh, becoming angry, or फिर third incident going to the office or without the papers, and fourth incident the बॉस के तरफ से भी जो एंगर मिला. Which is the prominent incident? Which is the reason of all the incident? Past. A, B, C, D. Which is the prominent incident among this? अच्छा, is it such a difficult answer? Past. कौन सी prominent है? Yes. आप नहीं बोलोगे तो फिर नाम से बुलाएंगे. Yes, राजेश भाई. Spilling the tea. A. What is A? One was the child spilling the tea. B incident, the father becoming angry. Third, going to the office, and third, even leaving the bus. स्कूल भी बस मिस हो जाती है. Going to the office. Fourth, heavy, fast, and fifth, the boss getting angry again. 1, 2, 3, 4. Father becoming angry. Okay. B. Okay. Any other answer other than this? Okay. So all do agree. E, second, is the main prominent scenario in the whole event. Now, like we can take it another way around. The child is again sitting in the breakfast table, and the moment he comes, the tea is spilled over the shirt, on the shirt of the father. इमीडिएटली फादर बोलता है, अरे बच्चे बेटे कोई बात नहीं, अरे जब आप थे मैं आपकी तरह था ना, तो मैं तो पूरा मग का मग ही मेरे ऊपर मैं गिरा दिया था. चलो कोई बात नहीं, अभी आप अकेले पी रहे थे, अब हम दोनों इकट्ठे चाय पियेंगे. और ऑर्डर करता है कि चाय बनाओ, और फिर दोनों पीते हैं. और फिर अच्छे से चाय पी वो चाय बनती है, तब तक वो ड्रेस चेंज करके करने जाता है, ड्रेस चेंज करके आता है. बाय द टाइम द टी इज रेडी, द सन इज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटिट्यूड ऑल्सो, कि मेरे मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, कितने शांत हैं, कितना लविंग है. आई लव माई फादर टू मच. और वो आता है, टेबल पे बैठते हैं, एंड द फादर ऑल्सो कम्स, एकदम गली मिलता है, एक पप्पी देता है, एंड फिर जल्दी जल्दी चाय पीते हैं. और बाय द टाइम द गोइंग टू द इधर बस स्कूल जाने का टाइम आ जाता है, एंड द चाइल्ड लीव्स हैप्पीली टू द स्कूल. और फिर बाद में वो जाते हैं, फटाफट तैयार हुआ, एंड ही इज रेडी. एंड बिफोर 5 minutes बिफोर, विथ ऑल द पेपर्स, ही हैज रीच द ऑफिस, एंड द बॉस इज नाउ हैप्पी. बॉस पूछता है, एंड ही इज रेडी विथ ऑल द पेपर्स, एंड दैट टू 15 minutes बिफोर, as
been told by the senior, and more therefore he is also more happy, the boss is more happy. और फिर खुशी खुशी से मीटिंग होती है, और फिर पूरे दिन जब शाम को आता है, द चाइल्ड रनिंगली कम्स टू द फादर, एंड सबको पता है कि बच्चे के खुशी को देखते ही माँ बाप की आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती ना. सो व्हाट चेंज द होल इवेंट? व्हाट चेंज द होल इवेंट? सिंपल. क्या चेंज किया? द रिएक्शन. Not getting angry. Wonderful. The reaction to the situation is the reason for changing the event. वही फीलिंग्स को जब इस तरह एजुकेट किया, कोई बात नहीं, हो गई बात, हो गई बड़ी से बड़ी बात हो गई, लेकिन उसमें अभी मुझे क्या करना है? हाउ कैन आई स्टिल बी पॉजिटिव? द सेम थिंग, इतना सा फीलिंग्स के बहकावे में, व्हेन आई एम जस्ट गोइंग एज पर द फ्लो ऑफ द सिचुएशन, इसने रॉन्ग किया, फिर मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने चार शब्द बोले. नाउ बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग एज पर द फ्लो ऑफ द सिचुएशन, तो क्या कर रहा है? एक इंजरी, फिर दूसरी इंजरी, फिर तीसरा अनसक्स नो सक्सेस, फिर फोर्थ, एवरीथिंग हैज बिकम हेवायर. और फिर हम सुबह फिर उठ के कहते हैं, पता नहीं सुबह उठ के किसका मुंह देखा था. तो एवरीथिंग इज नथिंग बट योर फीलिंग्स, हाउ टू एजुकेट योर सेल्फ कि उस समय अब मुझे क्या करना चाहिए. therefore education of the feelings is very easy. just I have to educate myself. ऐसा हुआ ना, इसने ऐसे गलत बोला ना मुझे, अब मुझे क्या करना है? and the things are easy. And when I'm not able to educate, I'm not able to pause. एजुकेशन में बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है. ओके, दिस हैपेंड, नाउ व्हाट आई हैव टू फील, नाउ व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन. कितनी भी बड़ी से बड़ी मिस्टेक किसी ने भी मेरे साथ की है, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड, आई नेवर डिजर्व इट, बट की है. अब उस फीलिंग्स में मुझे हाउ टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, हाउ टू थिंक इज कॉल्ड एजुकेशन. एजुकेशन मतलब क्या करते हैं? एड्यूस टू ब्रिंग आउट, इंड्यूस टू ब्रिंग इन, हाउ टू थिंक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन. इवन इफ एनीथिंग इज, मुझे किसी ने एकदम एक्यूज भी किया है, तुम काम के नहीं हो, तुम तो कभी भी ठीक से करते नहीं हो, तुमको आता ही नहीं है, इट्स ओके. उन्होंने मुझे बोल दिया. हाउ टू फील अबाउट माई सेल्फ इज माई एजुकेशन. What he has told me is his education. मुझे कैसे फील करना है? Have anyone in this lifetime have ever taught us to this kind of education? हमको ये बोला कभी कभी कि तुमने, उसने एक मारा, दो मार, नहले पे दहला. तो पहले एक गलती थी, अब दो, दोनों गलती कर रहे हैं. और इस कारण हो क्या रहा है? उनकी गलती नहीं दिखाई दे रही है. जब हम दहला मारते हैं ना, तो वो नहले वाले को नहले अपनी पहली गलती दिखती नहीं है. he can, because he can see a fresh mistake coming from the other side, so his focus is everything completely on that mistake, and my focus is on his mistake, and that is the problem going on. Can one be mistake free? This is called education. ये हमें एजुकेट करना कि एक ने गलती की ना, मुझे नहीं करना है गलती. यही समझदारी. एक इलिटरेट है, दूसरा भी इलिटरेट होता है क्या? आपका ब्रदर, आपका रियल नजदीक का, ही इज नॉट
टेकिंग द एजुकेशन, he cannot do, or maybe he is not so capacity भी नहीं है. Do we also don't want to educate because he उसने नहीं किया, उसने एमबीए नहीं किया, हमको भी नहीं करना है. उसने नहीं किया पर मुझे तो करना ही है. I want to do it because I want to be successful. I want to get good job. Similarly, उसने ऐसे ठीक से बात नहीं की, मुझे तो करना है ना. I want to do it. This is called educating your feelings. So, can we do that? So, any questions? Let us know. Okay. No questions? सारे सॉल्व है. Yes. निदेश भाई, any questions? See how long we need to follow it when somebody is doing the same thing again and again without realizing. द- कोई गलती करता रहता है और हम उसकी गलती को बार बार गुस्सा करते रहते. What actually is happening, मे बी जैसे आप गुस्सा करते हो वो ठीक हो जाता है, फिर वो वैसे करता है, फिर वो गुस्सा करते हो ठीक हो जाता है. व्हाट इज हैपनिंग, उसके गलती करने के जो भी नेच संस्कार है वो तो पावरफुल हो रहे हैं, मेरे भी तो गुस्सा करने के संस्कार पावरफुल हो रहे हैं. एंड देयरफॉर अब मुझे जहां नहीं करना चाहिए वहां भी मैं कर लेता हूँ, बिकॉज थ्रू आउट द डे आई जस्ट गेट ऑन इरिटेटिंग. एंड इफ आई एम, सी इफ इट्स नॉट दैट वी आर इग्नोरिंग, मतलब क्या है कि इफ एट ऑल इट इज अंडर आवर, इन आवर, मतलब मार्जिन, कि आई कैन, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ या मैं उसको कुछ बोल सकती हूँ, इट्स वेल एंड गुड, बोलो, बात करो. लेकिन अगर आप बात कर ही नहीं सकते, मतलब इट्स नॉट अलाउड, यू कैनॉट, आपने बोल भी दिया नहीं, आपकी हायरार्की है, ही इज सीनियर टू यू, तो उस समय हम क्या करेंगे? वेर आई कैन हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ दैट मिस्टेक, वंडरफुल. लेकिन अगर नहीं हेल्प कर सकते, और आजकल अगर समान है, उसको कह दो, बोला पहले तुम अपना ध्यान रखो, for see yourself, maybe we'll get that answer also. So if that is the case, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपनी थॉट्स को वेरी पावरफुल रखना है, गुड विशेष रखने, एंड which I have repeated many times earlier also, you just be very, have very powerful thoughts कि ये बहुत शांत है. सपोज वो गुस्से, एंगर, कोई मिस्टेक कर रहा है, क्रोध करने का मिस्टेक कर रहा है या केयरलेस है, अब उसको हम थॉट क्रिएट करें उसके लिए, ही इज अ वेरी केयरफुल पर्सन, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी सेंसिबल. अब बार बार उसके लिए थॉट्स ही क्रिएट करो, जो आपको उसको बनाना है उसको वो थॉट क्रिएट करो. अब पहले हम वो थॉट क्रिएट कर ले 1-2 दिन, उसके बाद अब आप अगर आपको कुछ उसको अलर्ट करना है, कुछ शिक्षा देनी है, बाद में आप उसको बोलो कि ठीक है, देखो ऐसे ऐसे है, ये है. बीज, फाउंडेशन इज माई थॉट्स, माई फीलिंग्स. अगर मेरी फीलिंग्स नेगेटिव है, फिर मैं कितना भी कह दूं, मैं फिर बोलने में भी स्टार्ट, हाउ डू आई स्टार्ट, क्या है तुमको कितनी बार कह दिया, तुम वापस वही वही करते हो. सो आई स्टार्ट विथ थर्ड गियर, फ्रस्ट्रेशन. एंड देयरफॉर जब व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस वे, द फीलिंग्स ट्रेवल मच फास्टर देन योर वर्ड्स, एंड देयरफॉर फीलिंग तो वो पहले से ही वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. और अब आप उसकी फ्रस्ट्रेशन वाली फाउंडेशन में, भूमिका में आप कितने भी अच्छे बीज बो दो, पूरा गंदा है नीचे सॉइल, अब आप बीज कितना भी अच्छा बो दो, इट वोंट बी दैट इफेक्टिव.
Feelings are your foundation of any conversation. So I have to have a very powerful feelings in case I need to correct that person. और ये ट्राई करके देखो. Yesterday, 2 days before, I was in a college, and that director general, he invited us for a session there. तो उसकी he was telling about a student कि once he was just passing through, so that student was just studying, not with not much interest. तो डीजी ऑफ द कॉलेज है, तो उसने जस्ट उसको बुलाया. बोला, सर मुझे ये मैथ्स है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मेरे को कभी भी इसमें अच्छे स्कोरिंग आते नहीं है. आई हेट दिस सब्जेक्ट. बोला, दिस इज द रीजन वाई यू गेटिंग लेस इन मैथ्स. नाउ ही टोल्ड कि आप खाली ये बोलो, आई लव मैथ्स, मैथ्स इज वेरी इजी, आई लव दिस सब्जेक्ट अ लॉट, आई लव दिस सब्जेक्ट. आप जस्ट ये बोलते जाओ. एंड दैट ईयर उसने बोला, ठीक है सर, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, बट यू आर सेइंग, डीजी बोल रहा है तो करेंगे. करने लगे करने लगे. दैट ईयर द चाइल्ड स्कोर 95 marks. What we are thinking and feeling, we are attracting that situation. This is that education we need of the feelings. तो मैं उसको बार बार ये थिंक कर रही हूँ, ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत खराब है. बिल्कुल मानता नहीं. समवेयर, not somewhere also I should say, 100% we are contributing to his mistakes. इसलिए वो मिस्टेक ज्यादा करता है. हम सपोज कुछ कुछ हमारे से गलती हो गई, और हमारा बॉस हमारे सामने है, और वो इस नजर से देख रहा है, तो हमारा हाथ क्या ज्यादा शिवर होता है, या हम गलती करना बंद हो जाता है? वो खाली देख रहा है बड़ी तिरछी नजर से. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? होता है ना? ही इज जस्ट सीइंग नथिंग डूइंग, बट दैट इज क्रिएटिंग अ पैनिक इन मी, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव, it's not improving or correcting my already done mistake. Therefore, this is what I have to understand. अगर कोई एक जन गलती करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेट्स बी वेरी क्लियर, कहीं मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ. अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ क्या है, और उसके साथ जिसके साथ सारा समय मुझे साथ में रहना है, कलीग है, बाजू में ही रहना है, ये तो बहुत खराब है, समझता नहीं है, बहुत खराब है, बात कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत खराब है, बहुत खराब है. हम उसकी फील ही कर रहे हैं. नथिंग मोर देन इनफ. इट्स लाइक 1,000 times आई एम टॉकिंग टू दैट सोल. तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत खराब हो. किसका एक्सपीरियंस है कि हमको बचपन में ना हमेशा बोला गया है, तुम डफर हो, तुम डफर हो, तुम डफर हो. और सचमुच मुझे कभी मोटिवेशन ही नहीं होती थी पढ़ने की. एनीवन हैज गॉन थ्रू दिस सिचुएशन इन लाइफ? यस, निदेश भाई. यू टेंड टू प्रूव. मैं हुई ना डफर, ठीक है ना, मैं तो हुई ना, तो फिर क्या है? फिर मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बहुत अच्छा करूं? ऑन द कॉन्ट्ररी, वी बिकम मोर स्टबर्न, कि मैं तो हुई ना, बिकॉज द पर्सन हु was seeing my mistake has not educated his feelings, and therefore when that without with that powerful feelings which is been said to me, तो मेरे को भी अपने फीलिंग्स को एजुकेट नहीं करने का दिल करता है. मैं भी हूं जैसे हूं, ठीक है. तो मैं जब ये बार बार थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत खराब करता है, ये तो बहुत गलती करता है, बहुत गलती करता है,
मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ उसकी मिस्टेक को। इसलिए अगर वो कर रहा है, एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स अच्छी हो कि नहीं ये बहुत समझदार है, ये सीख जाएगा, ये समझदार है। एंड देन विद दिस बिलीव्ड थॉट, आप बिलीव कर रहे हो कि ये समझदार है, ऐसे नहीं बोलने के लिए, अदरवाइज इट इज आर्टिफिशियल। एंड देन यू टेल टू दैट पर्सन कि नहीं, देखो ऐसे नहीं, ऐसे करो, डिपेंडिंग ऑन द केस, कि कभी बोलना होता है, कभी नहीं भी बोलना होता है, कहीं चुप बैठना होता है, बट एटलीस्ट मेरी फीलिंग्स तो फिर भी ट्रेवल कर सकती है। दिस इज, so you are not ignoring them, but you are helping them. Don't ignore, don't sideline, don't distance. Help them. This is called adjustment. Easiest तरीका क्या है? साइड हो जाओ, साइडलाइन हो जाओ, कीप डिस्टेंसिंग। मॉडर्न तरीका यही है ना। एंड देयरफॉर आजकल के बच्चे कहते हैं हमको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ भी जाएंगे फिर इतने वहां इतने लोग आएंगे, फिर वो इतना खाना पीना हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इट्स बेटर हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, मम्मी डैडी तुम जाओ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के साथ एडजस्ट करना नहीं आता है, मुझे उसका देख के गुस्सा आ जाता है। एंड व्हेन दिस सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी गो टू द ऑफिस, और ऑफिस में हर तरह के पर्सनालिटीज मेरे पास है, क्या हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट ईच अदर्स वीकनेस, इसलिए बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए। और फिर वो 8 to 8 इफेक्टिव आवर्स ऑफ द डे, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण जब घर में आते हैं, इतनी सी बात में दाल ठंडी है, इतनी गर्म नहीं होनी है जितनी होनी चाहिए, दिस लिटिल थिंग क्रिएट स्पार्क इन माई लाइफ। ट्रू, ट्रू। फिर पेरेंट्स बच्चे कहते हैं माय पिताजी है ना बहुत गुस्से वाले हैं। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू माई सेल्फ, एजुकेट माई सेल्फ, therefore I'm not able to educate people around me, not influence people. I'm just be influenced. I'm not able to influence them. So this is what we have to do. अपने कुछ भी बात इमीडिएटली आती है उस समय एजुकेट करो, क्या ये ठीक है? क्या मेरी, उसने ऐसा किया मुझे भी, मैं भी ऐसे करूँ, क्या ये ठीक है? एजुकेशन में क्या, जो एजुकेटेड होते हैं ना वो, द वे ही विल सी द थिंग्स and the way an illiterate will see the things, फर्क है। The same movie, he will go to the pros cons why about the situation, और जो illiterate होगा वो कुछ why में देखेगा नहीं, ठीक है ऐसे हो रहा है, so I'll understand why his mistake is getting more stronger, or why I am getting more and more angrier. Going to the why of the feelings is called educating your feelings. This is what is needed. Okay, any more question? So the chart, if we just see ourselves, a small chart, सपना बेन विल शो अ चार्ट, हम जो चार्ट, एक चार्ट हमने बनाया है कल, तो जस्ट गो थ्रू वन चार्ट, इट्स अ वेरी डीप चार्ट। आई वुड लाइक कि आज लास्ट डे ऑफ द मंथ ईयर है, एंड टुमारो विल से एवरीबॉडी हैप्पी न्यू ईयर।
Okay, everyone would say, let us feel and say Happy New Year. मतलब जो मेरे पुराने थॉट्स थे, पुराने मेथड्स थे मेरे अब, विच वॉज इन 2024, दैट आई वोंट रिपीट अगेन. तो एक सिंपल चार्ट है. आई वुड लाइक इफ एवरीबडी कुड नोट डाउन. एंड पुराने संस्कारों का अकाउंट, माय ओल्ड संस्कार, उसका एक अकाउंट एज ऑन 31/12/2024, एंड विल राइट द परसेंटेज. And therefore, DEF, when we'll meet the next in the new year. तो फर्स्ट इसमें परसेंटेज लिखना है. यह ऐसा है, यह वैसा है, ये सोचना और डिस्कस करना. फालतू बातें, जस्ट गोइंग ऑन, किसी की कमी कमजोरियों को बैठे बैठे सोचते रहना और डिस्कस करना. हाउ मच परसेंटेज डू आई हैव दिस इन मी? Clear? Can write the percentage? Okay. फाइनल सर्टिफिकेट कि ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरने वाला नहीं है, ये तो गॉन केस है, इसकी तो समझ की बाहर है. Many times we give final certificate to many people around us. मीन्स मेरा सर्टिफिकेट देने का नेचर है. यू कैन टेल योर फीलिंग्स, बट वाई डू वी गिव सर्टिफिकेट? हु एम आई टू गिव द सर्टिफिकेट? ये तो सुधरने वाला नहीं है, कितना भी बोलो, ये तो आउट ऑफ माई कंट्रोल है. मैंने पहले से ही उसको राइट ऑफ कर दिया मेरे अकाउंट में से. सेकंड, तो हाउ मच परसेंटेज दिस संस्कार मेरे में है? मजाक करने का संस्कार. बहुत सारी बातें मजाक मजाक में करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि सॉरी प्लीज माइंड नहीं करना. बोलते हैं ना, मतलब टॉन्ट करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे. इन अ वे वी आर हर्टिंग दैट पर्सन, एंड इन अ वे वी आर क्रिएटिंग नेगेटिव फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ मजाक. उसके कॉम्प्लेक्स को, उसके इमेज को टार्निश करते हैं. एंड देन वी आर जस्ट एक आर्टिफिशियली बोल देते सॉरी. हाउ मच परसेंटेज दिस संस्कार? अनुमान लगाना फोर्थ है. सबको दिखाई दे रहा है ना? अनुमान लगाना और फिर उसके ऊपर चिंतन करना. मतलब ये यहां से उठा, उसके बाहर गया, मतलब जरूर कुछ होगा, फिर उसको मेरे बारे में बोल रहा होगा. आई जस्ट गो ऑन एस्टिमेटिंग. एक अनुमान लगाने की बीमारी है. और फिर आई गो ऑन थिंकिंग, चिंतन करना. यूट्यूब, व्हाट्सएप कंटिन्यूस जो बने हैं उसको देखते रहना एक एक हॉबी हो गई है. कुछ भी बात हो, एक एक सेकंड में फुल स्टॉप. इन 1 सेकंड बात हो गई, फिनिश. नाउ आई लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर एंड कम बैक टू द प्रेजेंट. तो कुछ भी बात हो, कैन आई पुट फुल स्टॉप? कभी कभी एक 15 मिनट हो जाते हैं, एक दिन हो जाता है, कभी कभी एक हफ्ता हो जाता है. मैक्सिमम कितने दिन तक वो उस बात को लेकर बैठ सकते हैं हम लोग? व्हाट इज अवर कैपेसिटी? मैक्सिमम इंडिविजुअल कैपेसिटी years. ओके, वंडरफुल. जीवन भर नहीं भूलते. सो फीलिंग, तो कुछ भी बात हो 1 सेकेंड. देयरफॉर वी आर नॉट नेवर फ्रेश.
सुबह का खाना शाम को नहीं खाते, बासी हो जाती है। मन में कितने समय की बासी बातें रखी हुई है, इसलिए फ्रेश नहीं है। फीलिंग के फीलिंग में आने पर, हाँ, कोई भी फीलिंग तुरंत फीलिंग में आ जाते हैं। उसने ऐसा कहा, मतलब एक फील फील कर लेते हैं, तुरंत हर्ट फील करना, कॉम्प्लेक्स में रहने का संस्कार। दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी वी आर गोइंग थ्रू। मेरी आइडिया है, मेरी सेवा है, मेरी आइडिया क्यों नहीं लिया, जरूर। हम लोग कौन है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम कौन होते आइडिया देने वाले, हमारी कौन मानने वाले हैं। ऑलवेज आई एम इन दैट कॉम्प्लेक्स। कुछ भी बात हो, फर्स्ट इमीडिएटली जस्टिफाई करना। मैंने थोड़ी कहा था, मैंने नहीं किया, ये उसने रखा। हैव टू जस्ट जस्टिफाई इट। और गॉसिप में टेका देना। कोई किसी की गलती बताता जा रहा है और मैं बार बार सिर हिलाती जा रही हूँ, टेका देना। हम है एनीवन गोइंग थ्रू दिस संस्कार्स? तो 31/12/2024, I have to see my account and put a percentage, and डी कॉलम में होगा 2025। I have to do a opposite virtue for this sanskar. Okay. So this is what we can do. Can we do this, all of us? It could be circulated in the emails and we'll check. Yes, I'm not going to. This 2024 में 25 में अगर the same circulation है, it means only the figure has changed, nothing has changed for me. Wonderful. So everyone will do, and I would get that message, जो आप सबके पास वो आएगा, प्रिंट आउट लेना और वो प्रिंट आउट लेके रखना। देन नेक्स्ट विल टेल यू व्हाट वी हैव टू डू। तो फर्स्ट इज जो भी वो है उसके अब इन 2025 आई वोंट कंटिन्यू दिस। आई विल, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। पॉसिबल? तो इस तरह हम 2024 नहीं, पुराने साल को विदाई नहीं देंगे, पुराने संस्कारों को विदाई देंगे, पुरानी पर्सनैलिटी को विदाई देंगे। सो विद दिस वी विश एवरीवन अ वेरी farewell to this old year. Let this be old now, and now we are in the new era, new year, new feelings, new understanding, and new determination. अब से मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी हो जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूनेस। पहले नहीं था, अभी ये न्यूनेस कर। रेडी? Yeah, thank you very much. So we'll just do a powerful meditation, reflect on ourselves, checking ourselves, seeing ourselves. कोई भी मेरे में पुराने दाग, किसी की बातों को अंदर रखा हुआ है। 2024 में कई घटनाएं हुई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी हुई, अभी तक उसकी फीलिंग में, उसका सॉल्यूशन को समझ के अब उसको लेट गो। अब से 2025 में कोई भी इस फीलिंग में मुझे नहीं आना है। जो भी हुआ और जो भी होना है मेरे लिए अच्छा ही हो।
I have a very bright future. Everything for me is the best. Deleting all the old feelings, creating a new you. और शिव बाबा की रिलीज मेरे ऊपर चल रही है. ओम ओम शांति. So happy new year in advance to all of you. Happy new ears, happy new eyes, happy new words, mouth, and happy new feelings. This will be the happy new year for all of you. Okay. Om Shanti. Happy New Year, Didi. Thank you. And thank you very much. Thank you, Didi. Thank you Thank to you, Didi. everybody else for attending the session today. I will be sharing the sheet with everyone on the recording mail. So please check it and take a printout of it. So we'll meet the next week. Wishing all of you all a very, very happy new year and have a nice day. Thank you and Om Shanti.